Dear students, welcome to online classes by Nasir Irfan. Today we are going to discuss a class 10th topic under J&K Board of School Education. Our today's topic is The Sermon at Benares, written by Berta Rensta. Berta Rensta was an American writer born on October 2nd, 1921 and lived till April 30th, 1999. She died at the age of 77 years. This lesson is about the character sketch of Siddhartha Gautama, who was born in 569 BC and lived till 483 BC. Siddhartha Gautama, who was a young prince living in a royal and comfortable family. He was not aware of the miseries and cruelties of the world, but he leaves the worldly comforts, goes under transformation and becomes the Buddha. He brought some drastic changes in his life. He gave up his family, his fortune and kingdom to seek liberation. He was actually deeply moved by the sufferings of the people, the sufferings of poverty, the sufferings of sickness, the old age, etc. एक्चुअली उसने कोशिश की कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए ही सॉट द लिबरेशन. ही ट्राइज मैनी मेथड्स इंक्लूडिंग योगिक वेज एंड मेडिटेशन बट ऑल गोज इन वैन. फाइनली उसको लिबरेशन जब मिली तो वो एक बोधि ट्री के अंडर मिली. एक्चुअली बोधि ट्री वाज अ फिग ट्री. इट वाज फाइनली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट कि उसने इस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ Buddha's teaching were to eliminate human sufferings and miseries. कोशिश थी उसकी कि इंसान की ज़िंदगी से दुख दर्द ख़त्म हो जाए and to find out the cause of these sufferings and to put an end to all these sufferings once for all. Finally उसने 4 noble truths दिए. उसने पहला ट्रूथ ये दिया कि life is full of sufferings and pains and we cannot avoid them. If we are to live, we have to go through sufferings and pain. Number दूसरा, pain is caused by desires and ambitions. As we all know, we have some endless desires and ambitions, but still we aspire and desire. The noble eightfold path, एक eightfold path भी है दिया हुआ बुद्धा का, जिसमें right view, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness and right samadhi are the contents of this noble eightfold path. And the fourth part or the fourth truth that has been mentioned is liberation from sufferings and pain is possible. उसके कहने का मतलब ये था कि अगर हम कोशिश करें, if we want to, liberation आज़ादी sufferings and pain से possible है, but it is all up to us how we respond to the world, how we respond to the actions or reactions by this world. Now let's explain this lesson in some detail. The lesson starts with the character sketch of Buddha as he lived from 563 BC to 483 BC. उसका real name Siddhartha Gautama था. He was a son of a king in northern India. He started his schooling in Hindu sacred scripture at the age of 12, and after 4 years at the age of 16 he married to a princess. The prince had a son and lived with his family for 10 years. इनका प्रिंस का एक बेटा हुआ और अपनी फैमिली अच्छे से 10 साल तक इन्होंने गुजारी. When he was on hunting trip, उसने देखा, he saw a sick man. उसने एक बीमार आदमी देखा, an aged man, एक बुजुर्ग आदमी देखा, a funeral and a beggar देखा. एक फनरल देखा, जनाजा जाते हुए देखा, और एक भीख मांगने वाला भिखारी आदमी देखा. These sufferings moved him and he decided to become a beggar and left his home, comforts, luxurious life to seek enlightenment. जब उसने ये सारी चीज़ें देखी कि दुनिया में इतनी सारी मुसीबतें हैं, कोई सिक है, कोई बूढ़ा है, कोई बैगिंग कर रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं कि ये सारी चीज़ें कैसे दुनिया से ख़त्म हो जाएं. So he sought liberation, he sought
enlightenment. He wandered for 7 years, but enlightenment came under a fig tree where he sat for just 7 days. Now he started teaching his new understandings. अब जब उसको इनलाइटमेंट मिल गई तो उसने कोशिश की कि अब वो जो उसका एक्सपीरियंस था वो दुनिया के साथ शेयर किया जाए और दुनिया की जो मुसीबतें हैं उनको कम किया जाए. He preached his first sermon at Benares, a city on the banks of holy river Ganges. उसने अपना जो पहला सरमन था, सरमन मीन्स अ रिलीजियस लेक्चर, दिया दरियाए गंगा के पास. दरियाए गंगा के पास एक शहर है जिसका नाम बेनारस है. वहाँ पे द सरमन इज़ प्रिजर्व्ड एंड गिवन इन दिस लेसन. उसी सरमन को प्रिजर्व किया गया, सेव किया गया और आज तक और हमारे लिए एक लेसन दिया गया इस बुक में. द सरमन इज़ अबाउट किस्सा गौतमी. ये सरमन एक औरत के बारे में है जिसका नाम किस्सा गौतमी है. किस्सा गौतमी इज़ अ वुमन हु हैड अ सन हु डाइड, बट इन हर ग्रीफ शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन. अपने दुख में, अपने दर्द में वो घर से घर, हर घर मतलब पूरे नेबरहुड में गई, पूरे शहर में घूमी, आस्किंग फॉर मेडिसिन कि उसको अपने उस मरे हुए बच्चे के लिए मेडिसिन लाना. और लेकिन वो जिस घर में भी जाती वो उसे बोलता कि शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि ये औरत पागल हो गई है. लेकिन फाइनली वो एक अक्लमंद आदमी से मिलती है और वो अक्लमंद आदमी उसे कहता है कि मैं तो आपको, आई कैन नॉट गिव यू द मेडिसिन बट आई कैन शो यू अ डॉक्टर, आई कैन शो यू अ मैन हु कैन गिव यू अ मेडिसिन. मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता लेकिन एक ऐसा आदमी है जो आपको मेडिसिन दे सकता है. एंड ही गेव हर द एड्रेस ऑफ बुद्धा. उसने एड्रेस उसे दिया कि आप बुद्धा के पास चले जाइए. अब शी केम टू द बुद्धा एंड नरेटेड द स्टोरी ऑफ हर डेड चाइल्ड. वो बुद्धा के पास आई, उसे सारी अपनी डेड स्टोरी, उस डेड बच्चे की स्टोरी सुना दी. बुद्धा ने उससे बताया कि यस, मैं इस बच्चे का इलाज कर लूँगा बट आई नीड अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड. The mustard must be brought from a house where no death had ever taken place. ऐसे घर से लानी है जिस घर में अभी तक कभी भी किसी की मौत नहीं हुई है. किस्सा गौतमी went all over the places and everyone offered her a good amount of mustard. किस्सा गौतमी हर घर में गई और हर घर ने उसे एक गुड अमाउंट ऑफ मस्टर्ड ऑफ़र की. हाँ, हम आपको ऑफ़र देंगे, हम आपको मस्टर्ड देंगे. When she inquired about the death of anyone in their family, लेकिन जब उसने ये इंक्वायर किया कि क्या तुम्हारे घर में किसी की डेथ हुई है, दे यूज टू से, दे सेड अल्लाह डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ. वो उसे कहते कि अरे भाई, हमें अपने वो जो सबसे बुरे दुख हैं, सबसे बुरे गम वाले दिन हैं उनकी याद मत दिलाओ. जो हमारे सबसे बुरे दिन हैं उनकी याद मत दिलाओ जब हमने अपने सबसे प्यारे लोगों को खोया है. उन्होंने उससे ये कहा कि द लिविंग आर फ्यू, द डेड आर मैनी. जो ज़िंदा हैं वो तो थोड़े से हैं लेकिन जो मर गए हैं, जो गुजर गए हैं वो बहुत सारे हैं. शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस टू गेट मस्टर्ड बट शी कुड फाइंड नो हाउस वेयर नो डेथ हैड टेकन प्लेस. किसी भी घर में उसे ऐसा नहीं मिला कि जिस घर में कभी मौत ना हुई हो. एट लास्ट शी लॉस्ट ऑल होप. फाइनली सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं. शी सैट डाउन ऑन द वे साइड. She could see the flickering lights of the city. By the time it was evening, Kissa Gautami got tired and hopeless and start watching lights of the city. अब जब वो एक रास्ते पे बैठ गई, एक किनारे पे बैठ गई, अंधेरा हो गया था. जब उसने लाइटें देखी, दे फ्लिकर्ड अप एंड एक्सटिंग्विश्ड. वो लाइट्स फ्लिकर अप होती थी और एक्सटिंग्विश हो जाती थी. एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाती थी. शी कंपेयर्ड देम टू द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स एट वंस and understood what Buddha wanted her to understand. अब जब उसने उन लाइट्स पे देखा जो जल रही थी फिर बुझ रही थी, उसने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ किया कि मैं या मुझे बुद्धा क्या कहना चाहते थे, या मुझे बुद्धा क्या समझाना चाहते थे. उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि नो वन हु इज़ बर्न कैन एस्केप डेथ. कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका जन्म हुआ है और वो डेथ को अवॉइड करे, ऐसा नहीं हो सकता. उसने ये समझा कि शी इज़ सेल्फिश इन हर ग्रीफ. उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं अपने दुख में सेल्फिश थी. द डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. कोई मौत से नहीं बच सकता, ये सबको आनी है. एंड टू सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस लीड्स टू इमॉर्टैलिटी. तो उसके समझने में ये बात भी आई कि अगर मैं सेल्फिशनेस को छोड़ दूँ
एक ऐसी ज़िंदगी जिएगी जिससे उसको ये दुख, उसके दर्द कम हो जाएं। शी केम टू द बुद्धा टू सीक हिज फॉरगिवनेस। फाइनली वो बुद्धा के पास आती है उससे माफ़ी मांगने के लिए, और बुद्धा उससे कहते हैं द लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड ब्रीफ एंड फुल ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स। बुद्धा ने उसे बताया कि ये दुनिया ही ऐसी है, इस दुनिया में ट्रबल्स, जो लाइफ है वो फुल ऑफ ट्रबल्स है, परेशानियों से भरी हुई है, दर्द भरी है और मुसीबतों से भरी पड़ी है। उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई, उसे बुद्धा ने समझा दिया कि नो वन कैन अवॉइड डेथ, कोई भी आदमी डेथ को नहीं रोक सकता। द एंड ऑफ लाइफ इज़ डेथ फॉर श्योर। एक बार अगर आप जिंदा हो गए, आपका जन्म हो गया, आपको मरना है, उसकी गारंटी है। बुद्धा मेड हिज पॉइंट बाय गिविंग सम एग्जाम्पल्स। एज जो उसने फर्स्ट एग्जाम्पल दी एक पके हुए फ्रूट की, एज अ राइप फ्रूट इज अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, आफ्टर ओल्ड एज देयर इज डेथ। जिस तरह एक पका हुआ फ्रूट जो पेड़ पे लगा होता है उसको जितना जल्दी पकेगा उतना जल्दी गिरने का खतरा होता है, इसी तरह उस पे डेथ का साया भी हमेशा रहता है कि न जाने कब मौत आ जाए। दूसरी एग्जाम्पल, ऑल अर्थन पॉट्स एंड इन बीन ब्रोकन। जितने भी अर्थन पॉट्स होते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनका एंड होता है कि उन्हें एक दिन टूटना होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। यही ज़िंदगी है इंसान की कि एक दिन अगर जन्म लिया तो उसने कभी ना कभी मरना ज़रूर है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, बोथ वाइज एंड फूल्स, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे कोई जवान हो या चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे अक्लमंद हो या बेवकूफ़ हो, सबको मरना है, इसकी गारंटी है। And Buddha finally made his point by saying that the only way to obtain peace of mind is to overcome all sorrow. Only by overcoming sorrow one can be full of peace and pure joy. तभी हम खुश भी रह सकते हैं, तभी हम प्योर जॉय के साथ भी रह सकते हैं। For more videos, subscribe the channel. Do tell me in comments how this lesson was. Thank you.